It's marvelous that you had so much support to take this big decision. Big decision of my life. I've found my own team, cameraman, sound, everything my own. And there, this biggest help came from most a stage quarter. Anna Saab, Mr. V. Shantaram. V. Shantaram ji. Rajkamal has never given any office to anybody. He came to know that Yash is becoming a producer. He needs some office. He's, you can say, all alone. He called me. My Rajkamal studio for you. You take the office, work from here. And in those days, there was some sort of ban on the artists. They can't work more than 3 films or 6 films. Don't bother about any man. As long as Rajkamal is working, nobody can dare to come here. So I can't forget, even till today I can't forget Anna Zafar. But the thing is, this went on. Yeah. Picture was ready. People saw the picture. All distributors came from all quarters. Next day I went to Kuchi's office and all the distributors are praising high. Wonderful film, but the direction you've done, but you. But I saw कि उनकी आंखों में कुछ बट है. भाई तुम बोल रहे तारीफ कर रहे मेरी, अरे भाई पिक्चर की बात करो, मैं प्रोड्यूसर हूँ भी. यार जी बुरा मत मानना, अगर ये पिक्चर इतनी ना चले, मैंने सोचा यार जी तुम पर हम आप बकर मत करिए, बहुत अच्छी डायरेक्शन है और हम लूज नहीं करेंगे. बहुत सस्ती पिक्चर बनाई आपने, पैसे कोई लूज नहीं करेंगे. उन दिनों में पिक्चर एनजीज पे बिका करती थी. मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत होगा, नहीं चली पिक्चर. इट्स माई लिटमस टेस्ट. लोग बोलेंगे इसको तो आते क्यों नहीं. एवरीथिंग वाज मिस बी चोपड़ा. But I couldn't do anything. The distributors on the release first week, they only booked 9 theatres. It was very, very small. It was small, 9 theatres was and small. because before that, a lot of film of Rajesh Khanna had not done well. So they had lost confidence in him also. So I was the first victim. But when on Monday announcement opened, it was so fabulous. They had to increase to 18 by Thursday. Here I come, and God is with you. Your honesty is your work. Confidence is your work. I never planned I'm making a bold film. No. I just planned this film, this story excites me. I'm a simple human being. If it excites me, if I make well, it'll excite everybody. And that was history. It's the biggest at that time. And from that day, Yash Shah Films has come up till today. Ashar. And I'd like to quickly move on to the next ones actually, जो हम लोगों ने जो ज़्यादा देखिए दाग, of course, उसके बारे में फिर से मैं बात करूँगा. The unconventionality of your subjects. You're a simple man, but you choose very, very unsimple topics to make. तो इसमें कुछ ना कुछ कहीं पर दाल में कुछ काला है. We have to find out. But quickly moving on, आपने 2 फिल्में साथ में की उस ज़माने में, 2 बिल्कुल अलग किस्म की फिल्में जो आज तक क्लासिक हैं, तब क्लासिक थी, जिंदगी भर क्लासिक्स ही रहेंगी. And completely chalk and cheese kind of films. Yash ji made 2 films near simultaneously. उस ज़माने में पहले तो इतनी बड़ी फिल्म बनाना और फिर 2 वैसी एक साथ बनाना बहुत ही बड़ी बात थी. यश जी मेड दीवार एंड कभी कभी टुगेदर एंड विद द ग्रेट मिस्टर अमिताभ बच्चन, जो एक में पोएट थे और एक में थोड़े से एंटी हीरो टाइप कैरेक्टर था. एंड बोथ ऑफ देम क्लासिक फिल्म्स, बोथ ऑफ देम. तो कभी कभी ऐसा नहीं होता था कि पोएम की जगह वो कहते थे मेरे पास माँ है और राखी जी को कहते कभी कभी मुझे मेरी माँ याद आती है. Secondly, these 2 people are the most punctual people I've ever worked with. Don't look at me like that. There's no question or sure. Amitabh Bachchan and Shashi Kapoor, the most punctual. I could depend on them. Whenever I want, they are there. But in these 2 films, I, being an honest man, an honest filmmaker, I gave the option of
releasing first Diwar in 75. I should be, he should be given preference. He putting money for both the films, of course. But when you talk of Kabhi Kabhi, I think that's the most enjoyable film I've ever made in my life. I pictured in all the 3 seasons of Kashmir, autumn, summer, and snow. यदि those things आज नहीं होंगे कभी. Jaya was my assistant, proper assistant in Kashmir. Amitabh's parents, they were actors in my film as कन्यादान करते थे राखी के parents. कुछ पार्टी के सीन थे, अमिताभ को भाई और भाभी है वहां पे. शूटिंग हो रही तो किसी के कोई ज्वेलरी आ रही, किसी की राखी को घाघरा किसी का आ रहा है, किसी कुछ आ रहा है. ऐसा है तब फिल्म नहीं बना रहे, पिकनिक बैठे हैं, ऐश कर रहे हैं. हम कभी शूटिंग करने चल गए पहलगाम में, शूटिंग चिंटू तो नीतू की. कहते हैं हम भी साथ चलेंगे भाई, तुम लोग शूटिंग करो, हम ऐश करेंगे, खाएंगे, मरेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे. आज तक आई थिंक कभी कभी से ज्यादा एंजॉयमेंट कभी नहीं हुआ. बिकॉज आई टोल्ड यू इट वाज वंडरफुल फिल्म मेकिंग दैट टाइम. उसकी स्टोरी मेरी वाइफ पैम ने लिखी थी. उसने कहां से ली मुझे पता नहीं, बट स्टोरी उसकी थी. शी गॉट द क्रेडिट फॉर इट. तो उस as you say, mentally it was not strain, it was challenge. It was challenge. I should be mentally stable, make films. I should be honest about them. And by the grace of God, both did very well. And yes, he's done that more often than once actually. He went on to do even Trishul and Kala Patthar. And Kala Patthar भी उसके बाद आपने same years में simultaneous shooting. And completely. वो भी एक गुलशन जी की मेरी थी. Yeah, so it's amazing the amount of work he's been able to put in with such big films. आज हम एक बनाते बनाते 3 बिंगे हो जाते हैं. और मेरी दूसरी कहानी जो आपसे जुड़ी हुई है, 80s की बात बता रहा हूँ मैं, तब शायद 14 या 15 साल का था मैं. और मैं एक शूटिंग हो रही थी आपकी फिल्म की सिलसिला, तो मैं वो शूटिंग देखने के लिए अपने घर वालों के साथ वहाँ पर पहुँच गया था. और मेरी कहानी ये है कि मुझे आज तक ये नहीं मालूम था कि मेरे बीवी के, होने वाली बीवी के जो घर वाले हैं वो भी वहाँ पर थे. अच्छा. तो जैसे आपकी फिल्मों में होता है ना, ऐसा गाना वाना चल रहा है, हाथों में 9 चूड़ियाँ और लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं. तो उस मैंने उम्र में देखा नहीं था गौरी को या उनको, लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि हमारी सारी फैमिलीज वहीं पर थी उस शूटिंग में. और उनकी जो मदर हैं वो बार बार मुझे बताती हैं कि वो खड़ी हुई थी एक कोने में और आपने लाके उनको कुर्सी पर ऑफर भी की. तो मेरा सिलसिला जो है आपके साथ चिपकने का काफ़ी मतलब चलता ही जा रहा था, रुक नहीं रहा था. एंड एक बात मैं पैमांटी आपको बता दूं, इस बातों में आपने नोट किया है कि जितनी भी हीरोइंस हैं वो यश जी को बहुत चीज़ें ऑफर करती हैं. राखी जी ने पैसे भी ऑफर कर दिए, पोएट्री भी हो रही है. सो आई यू जस्ट कीप, ये मैंने इसलिए ही किया ये प्रोग्राम, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा. Okay, and because we are talking Silsila, we move on to 1981. Am I right? That's the year? Yeah, 81. 1981 Silsila, जो again very bold subject, very different, but आज तक लोग ये समझना चाहते हैं और with all amount of dignity and goodness and honesty that perhaps it was one of the most interesting, one of the biggest, one of the most challenging casts in a film ever done in the history of Indian cinema. So वो कैसे हुई? यही original cast थी या पहले कुछ और था फिर आपने बदला? But Silsila 1981, the only thing I'll talk to you about is the casting of that film. This is not original casting. This original casting was in my mind. I wanted this casting. You wanted the casting? I wanted, लेकिन ये थी नहीं. But I knew it won't happen. Bachchan Sarjan used to work with he used to have full script with him. And he studies. He goes each and every comma will stop. After everybody gone out of the room, he says, he comes to me. Are you sure with the casting of the film? You're happy? I'm not happy. You tell me honestly, कि आपके लगता है कौन की आइडियल कास्टिंग क्या है इस सिलसिले में? मैं कि बताने का फायदा कुछ है क्या? अब तक शूटिंग करने हैं भाई हम लोग. तो फिर भी बताओ जी, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, बहुत कमाल स्क्रिप्ट है, फर्स्ट टाइम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में पिक्चर बन रही है यार. मैं कहता हूँ सच पूछो तो अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रेखा, ये कास्टिंग है. अब बोलो तुम. अमिताभ बच्चन सब बात करते, कुछ दिल सोचती है तो बहुत एक लंबा चौड़ा पॉज आता है.
ऐसा करते हैं, कल बॉम्बे चलते हैं और फिर दोनों से बात करते हैं, आप जैसे बात कीजिए, कैसे बात कीजिए, अगर हो जाए फर्स्ट क्लास। ये बड़ी मुश्किल बात है, बट मैं प्रोड्यूसर हूं तो करना ही पड़ेगा। हम दोनों आए फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली, दिल्ली टू बॉम्बे, हम दोनों साथ बैठे हुए थे, हमने शायद एक वर्ड भी एक्सचेंज नहीं किया, ऐसे दिखते थे। क्या होगा, ऐसे हाथ करते क्या होगा। आए, हम नेक्स्ट डे पहुंचे, मैं जिया के पास गया, रेखा से बात की, हाफ ऑफ श्योर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ठीक है। मैं कहा जय एक बात यह है कि ठीक तो है, पर कल शायद हम शूटिंग पे जा रहे हैं कश्मीर, क्या? हाँ, और ये कास्टिंग हो गई, लेकिन बिफोर आई स्टार्टेड द फिल्म मैंने दोनों को अलग अलग इकट्ठा मिलना तो मुश्किल था, और ऑब्वियस रीजन कि यार देखो तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरी पिक्चर में काम कर रहे हो दोस्ती में, तब दोनों को रोल पसंद है। मैं तो बेईमानी नहीं करूंगा ना किसी के साथ, रोल तुम्हारे पास, स्क्रिप्ट तुम्हारे पास है, यार मेरे साइड पे कोई गड़बड़ी मत करना यार। दोनों ने मुझे श्योरली लाइक बिल्कुल प्रॉपर, वी विल डू द बेस्ट, डोंट वरी, एंड दे डिडंट गिव मी ट्रबल। आई मेड द पिक्चर इन परफेक्ट हार्मनी। तो क्या होता है कि मेरा ख्याल है कि सबक की बात नहीं है, when you're honest to stars and making film, genuinely honest, not just saying a word honest, कि this is script, I'm making this film, तो गड़बड़ी होने के चांसेस कम होते हैं। जब you play games, then others play games with you. Absolutely. Just ऐसे एक सवाल नहीं था, मैं I'm sorry, this is completely out of turn, but I would like to know, स्मिता जी और परवीन बाबी जी को क्या बोला आप लोगों ने? ये सबसे ये कश्मीर में ही बैठे हुए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब बुलाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। परवीन बाबी was shooting in Kashmir. Umesh Sharma, who was younger brother of Uday Sharma, he was my assistant in सिलसिला। मैंने जब ये दोनों हो गया तो मैंने उसको फोन किया, देखो ऐसा करो तुम परवीन को समझा देना यार, मैं कि ऐसा प्रॉब्लम है, माफी मांग लेना मेरे से। उसने समझा दिया होगा, लेकिन जब मैं बॉम्बे से वापस श्रीनगर पहुंचा हूं, देखिए किस्मत की खूबी, देखिए मैं उतरा हूं और प्रवीण जा रही थी बॉम्बे। छोटा सा एयरपोर्ट, ये तो नहीं अराइवल लॉन्च, डिपार्चर लॉन्च, वो भागी होगी मेरे पास आई, यश यू डूइंग व्हाट इज गुड फॉर द फिल्म, don't be afraid of me. Only one condition, you owe me a film. Because मैं पॉजिटिव बातें सबसे कर सकता हूँ, नेगेटिव बातें मैं बहुत घबराता हूँ, एक मैं जिंदगी में इसको ना नहीं कर सकता हूँ, और हम भी मुश्किल हो जाती है। कि मैं जब आया था बॉम्बे तो मेरा बहुत दोस्त था शशि कपूर, शशि यार काम करेगा, कहना क्या प्रॉब्लम क्या हो गई, ही वाज वर्किंग इन सिलसिला। मैं कही यार मैं स्मिता पाटिल को नहीं ले रहा हूँ, ना लो, मुझे क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा यार देख तू मेरा दोस्त है, मैं जा रहा हूं कल सुबह, तेरी ड्यूटी यह है कि तू स्मिता पाटिल को मिलो, उसको समझाओ मेरी प्रॉब्लम, और उसको बोलो काम नहीं कर रहे, और मैं तूने बोला मैं करूंगा। उसने मैसेज तो दे दिया, पर उसका क्या रिएक्शन वो तो मुझे बताया उसने। मैं जब पहले शेड्यूल करके आया था, मैं राजकमल स्टूडियो में शूटिंग ऑफिस था यहाँ, और किसी और फिल्म की शूटिंग चल रही थी स्मिता पाटिल की, उसको पता लगा मैं ऊपर बैठा हूं, वो मेरे पास आई, ये जी आपने किया तो वो जो आपको ठीक लगा, उसमें एक ही गलत बात थी, आप मुझे खुद बोल देते थे मुझे बुरा ना लगता, शशि बोला तो मुझे बुरा लगा, मुझे लगा मैं यू आर राइट। और कभी कभी आदमी ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में हो जाता है कि साफ खुल के बात नहीं कर सकता। I was very embarrassed for you. I think I did a wrong thing.
But I did thing which I did for the good of the film. अच्छा, तो आप सच बात बता दो यस जी। अब ये तो सब क्या है, हम दिलीप साहब से आपके बारे में पूछेंगे तो वो आपकी तारीफ करेंगे, आप इतने वेटरन और इतने अच्छे फिल्म मेकर हैं। आपसे पूछेंगे, आप भी उनकी तारीफ ही करेंगे क्रिएटिविटी की। और आप बार बार मेरी तरफ उंगली पॉइंट करके क्यों बोलते? इतने पंक्चुअल हुआ करते थे, ऑनेस्टी देखो एक्टर की उस जमाने। अब प्लीज कोई बैठा नहीं हो ना, हाँ अकेले बैठे मेरे साथ। मैं डर से जाता हूँ कि मुझे कुछ सिखा रहे हो आप। बट सच बात ये बताओ कि आपका और दिलीप साहब का एक्चुअल नाता क्या था, किस वजह से दोस्ती थी? ये सब तो क्रिएटिव बातें हो गई, जनरली जो बताई थी आपने मुझे। अब बड़ा नहीं मान जाएगा। नहीं, सच बता दो, एब्सोल्युटली। हम दोनों को खाने का बहुत शौक है, और कोई रीजन नहीं था ना साथ में काम करने का, कोई क्रिएटिव रीजन नहीं था। कुछ ग्रेट एक्टर में चाहे डायरेक्टर कुछ नहीं। नया दौर में हम जाते थे, वो बोलते थे देखो तुम शाम को आ जाना, हम ठहरे थे वेटरनरी हॉस्पिटल में छोटी छोटी कॉर्नर रूम, मैं चिकन बनाऊंगा और तुम डायरेक्ट बोलते रहना, मैं याद करते रहूंगा, उसको हम चिकन खा लेंगे। हम लोगों को बनाएंगे भाई चिकन खत्म हो गया, हम दोनों खा लेंगे। मुझे याद है मेरी दाग की सिल्वरजुबली हुई बांद्रा टॉकीज में, वो स्पीच कर रहे थे, देखो भाई अच्छा डायरेक्टर अच्छा एक्टर बनने का एक ही सीक्रेट है, आदमी का शौक कितना है खाने का। हम शूटिंग करते थे, हम 18 अंडे का ऑमलेट खाते थे। 18 अंडों का ऑमलेट खाते थे। और एक जो रेसिपी आज भी मेरी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट रेसिपी है कि कीमे के अंडर फ्राइड एग, कीमा बनाओ, हाँ। उसको फ्राइड एग डाल दो, वाह, तो वो कुछ टेस्टी बात है। ये उनकी दी रेसिपी है। लेकिन जो एक तो मैं असिस्टेंट था नया दौर में, जब से हम नया दौर में गए थे एज असिस्टेंट, ही इज ट्रीटेड लाइक ए यंगर ब्रदर टू मी। आई लुक अप टू माय एल्डर ब्रदर। आज 50 ईयर्स से ऊपर हो गए। 56 में नया दौर बनी थी, 57 में रिलीज हुई थी, आज 55 ईयर्स हो गए हैं। वही रिश्ता है हम दोनों का, काम करें या ना करें। रिश्तों में फासले काम से नहीं आते, रिश्तों के फासले और भी आते हैं। कीमा अंडा जरूर साथ में खाएंगे, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। कीमा जो है वो जिंदगी भर रहेगा ना, फिल्म में चलेगी। Okay, and you know this was also the phase I think the 80s when और ये बात सबको one should know that he's not been left without failure. Yes, he's also seen a lot of failure, times when films and work didn't go well, and 80s was a phase like that. Near Mashal and some other films he made after that. लेकिन फिर भी यश जी चलते रहे स्ट्रॉन्ग, और एक ही उनका विश्वास है जो मैं बार बार सुनता हूँ, आप भी इंटरव्यू में सुन रहे होंगे, कि जो दिल में आए सच्चे दिल से ऑनेस्टी से वो करो। एंड देन केम अ कंप्लीट टर्न अराउंड फ्रॉम द काइंड ऑफ इंटेंस फिल्म्स जो आप बना रहे थे उस वक्त। एकदम आपने अलग सा कुछ दौर शुरू कर दिया, और लव स्टोरीज का दौर जो एक शुरू हो गया। एंड द फिल्म दैट यू मेड वाज चांदनी। सो हाउ डिड दैट हैपन? उसमें आपने मुझे एक बड़ी अच्छी कहानी बताई थी उसके बारे में। At that time I was making Vijay. One day I was traveling from my home to the city for some work. मैं चलता जाता गाड़ी में देखा होर्डिंग चल रहे हैं, बोर्ड्स लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं। हीरो की शक्लें वही हैं। हीरो सेम है पोस्टर्स में। वेपन बदल रहे हैं, कभी चाकू है, कभी तलवार है, कभी बंदूक है, कभी कुछ है, कभी बम है, कुछ। मुझे लगा मैं क्या कर रहा हूं? What am I doing? I am making the same film because I just want to make a successful film. ये भी एक एक्शन फिल्म है, कोई लड़ाई झगड़ा ड्रामा, सॉफ्टनेस कहाँ? जो मेरे अंदर थे वो कहाँ चलेगी? इसलिए कि मैं कॉम्प्रोमाइज करना चाहूँ लाइफ के साथ। लोग बोलते हैं फाइट्स हाइलाइट्स होती हैं, तो यार फाइट्स हाइलाइट्स होती हैं तो गाना भी हाइलाइट से हो सकता है अगर अच्छा गाना होगा तो। I knew I was making a film which is not from my heart. I knew I was making a wrong film from my mind, from my heart. But before I reached home, I decided, no, I'll make a film in which I believe in. A hardcore romantic film with 9 songs, that were 9 highlights. And I thought of Chandni. I'll make this film. But you had the honesty enough to realize that you were going wrong and maybe you were compromising. I was compromising because I was trying to make a hit film. I was not trying to make a good film.
The difference between good film and hate film is that you'll compromise in every step. I say, let me make my films on my own terms.